Dear students, today we are going to start chapter 3 Weather and Climate. In this chapter, you will learn the difference between weather and climate, about the factors that affect the climate of a place, and about the climatic or heat zones of the world. Children, have you ever thought why it is sometimes sunny in one part of the city while it might be raining in another part? Think about it, and you will know about it by the end of this chapter. Weather. Weather is the condition of the atmosphere at a particular place and time. What is weather? It is the condition of atmosphere at a particular place. एक particular place की atmospheric condition एक पर्टिकुलर टाइम पर एंड वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग वेदर चेंज होता रहता है फॉर एग्जाम्पल इन द मॉर्निंग द वेदर मे बी कूल एट नून it may be very hot and in the evening it may become pleasant. So this is weather. It keeps on changing. Next is climate. Climate is the average weather conditions of a particular place over a long period of time. It is weather condition of a place. It is average weather condition of a place over a long period of time, usually for 20 to 30 years. Means climate is also weather condition, but it is average weather condition. मीन्स थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है बट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता सो इट इज़ एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जैसे आपको पता है कि वी लिव इन नॉर्दर्न प्लेस एंड व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न प्लेस एंड इफ वी गो टू कोस्टल एरियाज व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज there may be little bit change but not very much change so this is called average weather condition. Different parts of the world experience different climates. दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में क्लाइमेट कंडीशंस अलग अलग होती हैं एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस डिफरेंट क्लाइमेट्स इवन इंडिया इज़ वन कंट्री बट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो वी experience different climates. The climate of a place influences the lifestyle of the people. जो क्लाइमेट होता है उसकी वजह से लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो इन्फ्लुएंस होता है कि लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है देयर फूड हैबिट्स एंड ऑक्यूपेशन क्लोथ्स दे वियर एंड हाउसेस दे लिव इन ये सारी चीज़ें किससे डिसाइड होती हैं कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा है द वेजिटेशन ऑफ अ प्लेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स क्लाइमेट और किसी भी जगह की वेजिटेशन कैसी है वहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है चेंजेस इन क्लाइमेट गिव राइज टू चेंजेस इन सीजन और जब क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं तो सीजन्स भी चेंज होते हैं द 5 मेन सीजन्स आर समर विंटर मानसून स्प्रिंग and autumn. Difference between weather and climate. What are the differences between weather and climate? First, weather, it is the daily condition of the atmosphere at a particular place and time. It is daily condition. Means daily कुछ changes होते रहते हैं. Climate is, it is the sum total of average weather conditions. Means जो average weather conditions होती हैं उसका sum total है climate of a place over a long period of time. Weather may change many times during a day. एक दिन में बहुत बार weather change हो सकता है and climate changes after a long period of time. और जो climate में change होता है वो बहुत सालों तक बहुत सालों बाद change होता है. It affects weather affects the daily life of people और weather की वजह से लोगों की daily life affect होती है and climate affects food habits ट्रांसपोर्टेशन हाउसिंग एंड ऑक्यूपेशन और क्लाइमेट की वजह से लोगों के खाने पीने का तरीका
उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनके घरों का जो घर बनाने का तरीका, हाउसिंग का तरीका, एंड देयर ऑक्यूपेशन, उनका काम करने का तरीका, ये सब क्लाइमेट की वजह से अफेक्ट होता है। द साइंटिस्ट हु स्टडी वेदर आर कॉल्ड मीटियोरोलॉजिस्ट्स, और जो साइंटिस्ट वेदर को स्टडी करते हैं दे आर कॉल्ड मीटियोरोलॉजिस्ट, एंड द साइंटिस्ट हु स्टडी क्लाइमेट आर कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजिस्ट। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स सच एज altitude, latitude, distance from the sea, humidity and wind. Let us learn about them in detail. First is distance from the equator. This is the first factor that influences the climate. The climate of a place is affected by its distance from the equator. किसी भी जगह का क्लाइमेट उस जगह की इक्वेटर से डिस्टेंस कितना है इस पर बहुत डिपेंड करता है। The places near the equator are much hotter because they receive more sunlight than places situated at higher latitudes. जो जगह, जो प्लेस इक्वेटर के पास होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं उन जगह के कंपैरिजन में जो इक्वेटर से दूर होते हैं। यू कैन सी द एरिया नियर द इक्वेटर रिसीव्स डायरेक्ट सन रेज एंड द एरियाज नियर द पोल्स receives slanting rays of the sun. The sun's rays falling on the equator are vertical and spread over a small area. जब सन रेज इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं दे आर वर्टिकल, दे आर स्ट्रेट एंड स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया, तो वो स्मॉल एरिया पर स्प्रेड होते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर इट इज टेकिंग वेरी लेस एरिया, दैट्स व्हाई दे आर वेरी मच हॉट। Hence the equatorial regions experience a hot and humid climate, और इसी वजह से जो equatorial regions हैं वहाँ पर hot and humid climate होता है। However, as we move away from the equator and towards the poles, the sun rays become slanting and cover a large area. और जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ पोल्स की तरफ जाते हैं the sun rays become slanting. जो सन की रेज होती हैं वो slanting हो जाती हैं। You can see in the picture the sun rays are slanting and cover a larger area, और इसकी वजह से वो लार्जर एरिया को कवर करती हैं, बहुत सारे एरिया में स्प्रेड हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट प्लेसेस सिचुएटेड नियर द पोल्स एक्सपीरियंस अ कोल्ड क्लाइमेट, और इसकी वजह से जो एरियाज पोल्स के पास होते हैं वो कोल्ड क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करते हैं, वहाँ पर ठंड होती है। इन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एरियाज प्लेसेस सिचुएटेड नियर द इक्वेटर रिसीव मोर हीट than those situated near the poles, and that's why the places which are situated near the equator, जो जगह इक्वेटर के पास होती है वो ज़्यादा हीट को रिसीव करती है, ज़्यादा गर्मी होती है in comparison of the poles. Next is altitude. The altitude of a place also affects its climate. किसी भी जगह का altitude डिसाइड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। Altitude means height above sea level. किसी भी जगह की हाइट जो है वो सी लेवल से कितनी है, दैट इज कॉल्ड altitude of that place. Places situated at lower altitudes are hotter than the places situated at higher altitudes. जो जगह लोअर altitudes पर होती हैं वो ज़्यादा गर्म होती है इन कंपैरिजन ऑफ द प्लेसेस सिचुएटेड एट हायर अल्टीट्यूड्स। प्लेसेस लोकेटेड नियर हिल्स और माउंटेन्स आर कूलर, और जो जगह हिल्स और माउंटेन्स के पास होती है वो ज़्यादा ठंडी होती है। फॉर एग्जाम्पल हिल स्टेशंस लाइक शिमला, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, नैनीताल आर लोकेटेड इन द मिडल हिमालयस। ये सारी जगह मिडल हिमालयस में सिचुएटेड हैं। ऊटी इज इन तमिलनाडु, दैट्स व्हाई आई डिडंट मेंशन इट, और रेस्ट ऑफ द प्लेसेस आर इन मिडल हिमालयस। तो ये सारी जगह जो है दे आर हिल स्टेशंस एंड दैट्स व्हाई they experience a cool climate in summers, and these areas due to high altitudes they experience cool climate in summers. On the other hand, places situated near the place
are hot in summers and cold in winters. और दूसरी तरफ जो जगह प्लेन्स में होती है they are hot in summers and cold in winters as you experience in northern plains. northern plains में हमारी जो गर्मियाँ होती हैं वो बहुत गर्म होती हैं और सर्दियाँ जो हैं वो कोल्ड होती हैं. फॉर एग्जाम्पल शिमला इज लोकेटेड एट अ हायर एल्टीट्यूड एंड दिल्ली इज लोकेटेड एट अ लोअर एल्टीट्यूड. शिमला माउंटेनस एरिया में, दैट्स वाई उसका जो हाइट है वो सी लेवल से ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ दिल्ली, तो उसका एल्टीट्यूड दिल्ली से ज़्यादा है. As a result, Shimla is cooler than Delhi even during summers, and that's why Shimla में summers में भी ज़्यादा ठंड होती है in comparison to Delhi. The peak of Mount Everest, located in the Himalayas, is covered with snow throughout the year during summers. और जो माउंट एवरेस्ट की पीक है वो हिमालयाज में है. दैट्स वाई इट रिमेन्स कवर्ड विथ स्नो, इसलिए पूरा साल स्नो से कवर रहती है समर्स में भी because of its high altitude. Thus, the temperature of a place decreases with an increase in the altitude. और इसी वजह से किसी भी जगह का टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है जैसे जैसे उस जगह का एल्टीट्यूड, उस जगह की हाइट जो है सी लेवल से वो बढ़ती जाती है. दैट्स वाई ड्यू टू एल्टीट्यूड the temperature of a place decreases. Okay, dear children, that's all for today. Continue in next lecture. See you soon.